السلام علیکم بس انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ پہلے تو بچہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی معاشرے کا ایک حصہ بنتا جاتا ہے اس کے سامنے ٹارگٹ آتے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میرے پاس کیا ہونا چاہیے، اور میری کیا حیثیت ہونی چاہیے معاشرے میں۔ لیکن تمام انسان جو ہیں ان میں یہ چیزیں مشترک ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے میری رہائش صاف ستھری ہو، سب سے اچھی ہو، میرے کپڑے، میرا لباس، میرے اہل و عیال، ان پہ رزق کی کشادگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ غم سے اور پریشانی سے ہر انسان دور بھاگتا ہے کہ کوئی غم بھی نہ ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، رہنے کی جگہ بہت خوبصورت ہو، بہت عالیشان ہو، کھانے پینے کو جب دل کرے، جس طرح دل کرے وہ ملتا رہے۔ یہ انسان کی فطری خواہشیں ہوتی ہیں اس دنیا میں بھی، یعنی یہ زندگی کی خواہش ہے، اور یہ خواہش پوری بھی ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں نہیں، کسی حد تک، لیکن جو مکمل طور پر پوری ہوتی ہے وہ آخرت میں پوری ہوتی ہے۔ جب انسان جنت میں چلا جاتا ہے تو انسان کی یہ جو ساری خواہشیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اس کو عظیم و شان باغات دے دیتا ہے، وہاں پہ نہریں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، جو کانے کو دل کرتا ہے وہ ملتا ہے، آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور ایسی خوبصورتی ہوتی ہے، ایسا آرام ہوتا ہے، ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کا اس دنیا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی لغو بات، کوئی ناگوار قسم کی چیز وہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ جنت کے نظارے ہیں، جنت کے حالات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جس کے بارے میں میں حمید خٹک بار بار ولاگز بناتا رہتا ہوں۔ آج کا ولاگ بھی اسی حوالے سے ہے، جو جنت کی مختلف پہلو پہ روشنی ڈالے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 76 to 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ رحمان جو پارہ نمبر 27 میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آیات 76 to 78 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علی رفرف خضر و ابکری حسان، متکئین علی رفرف خضر و ابکری حسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ ہے، جنتی حضرات سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر، جنتی حضرات سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر، کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کافی، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی آرام دہ پوزیشن ہوگی کہ جنتی حضرات سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ بڑا ببرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔
پھر سورہ غاشیہ کے آیت نمبر 13-16 یعنی 13-16 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے حالات بیان کرتے ہیں کچھ اس طرح سے وجوہ یومئذ ناعمہ on that day other faces will be glowing with bliss. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوشیوں سے چمکتے ہوں گے. On that day other faces will be glowing with bliss. وجوہ یومئذ ناعمۃ. On that day other faces will be glowing with bliss. خوشیوں سے چمکنے والے چہرہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے. انسان خوش ہوتا ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ انسان خوش ہے. انسان پریشان ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ انسان پریشان ہے. تو اس دن جنت میں جانے والوں کے جو چہرے ہوں گے وہ خوشی سے چمکتے ہوں گے. یہ راضیات fully pleased with their striving فی جنت عالیہ in an elevated garden. اونچے باغات میں یعنی ان کے چہرے خوشیوں سے چمکتے ہوں گے, خوشادگی ہوگی, اونچے باغات ہوں گے. لَتَسْمَعُ فِيهَا لاغیہ, اور وہاں پہ کوئی بھی فضول قسم کی بات نہیں ہوگی, کوئی بھی ناگوار قسم کی گفتگو نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ, اور وہاں پہ چشمے پھوٹتے ہوں گے, چشمے بہتے ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ, اور اونچے تخت ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور جنتیوں کے ہاتھوں میں کپ ہوں گے, پیالے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور بہت ہی خوبصورت قسم کے تکیے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور خوبصورت قسم کے قلین جو ہوں گے وہ بچے ہوئے ہوں گے. یہ جنت کے کچھ مناظر ہیں کہ وہاں پہ ایک تو چہرے جو ہوں گے وہ خوشی سے چمکتے ہوں گے, کشادگی ہوگی, اور اونچے باغات ہوں گے. اس میں تخت بچے ہوں گے, اس میں تکیے ہوں گے, خوبصورت تکیے ہوں گے, خوبصورت تخت ہوں گے. اور جنتیوں کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے, اور وہاں پہ جو چشمے ہیں وہ پھوٹ رہے ہوں گے, وہ بہتے ہوں گے. اور کوئی بھی ناگوار قسم کی بات نہیں ہوگی, کوئی فضول ناگوار بات بھی وہاں پہ نہیں ہوگی. تو دوستو یہ اس میں اونچے تخت بچے ہیں اور رکھے ہوئے ابخورے موجود ہیں. یعنی یہ سامان جنتی کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پینے کو جی چاہے دیر نہ لگے. اور برابر لگے ہوئے گدلے یعنی تکیے ہیں, اور سب طرف قلین ہی قلین پہلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہے آرام کر لیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے. اب کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے, اور اللہ تعالی جب راضی ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنے مہمان خانہ یعنی جنت میں رکھ لیتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ عز و جل کسی مومن کے بیٹے کو موت دیتا ہے تو اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے برا بھلا کہنے کی بجائے آپ کی تعریف کی ہے.
और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में एक घर तमीर कर दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। यानी जब किसी का बेटा फौत हो जाता है, तकलीफ होती है, बहुत बड़ी आजमाइश होती है, तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे ने इस आजमाइश, इस तकलीफ की घड़ी में क्या कहा है। अगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, अल्लाह की तारीफ की है और ये पढ़ा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, तो इस बात पे अल्लाह ताला क्या कहता है, फरिश्तों को कहता है कि इसके लिए जन्नत में एक घर तमीर कर दो और उस घर का नाम क्या रख दो, उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। जो शख्स 10 मरतबा सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे। और जो इसको 20 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में 2 महल बना देंगे। और जो शख्स इसको 30 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में 3 महल बना देंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फिर तो हमारे महलात बहुत हो जाएंगे। तो अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा वसी रहमत और अता वाले हैं। हजरत उस्मान बिन उफ़ान रदियल्लाहु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए मस्जिद तमीर की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएंगे। हजरत अंस रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज चाश्त की 12 रकात पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का एक महल बनाएंगे। नमाज चाश्त और जोहर की 4 सुनते हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज चाश्त और जोहर से पहले की 4 सुनते अदा की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु फरमाती है कि मैंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स ने हर दिन रात में 12 रकात सुनन मुकद्दा अदा की, उसके लिए इन रकात के सवाब में जन्नत में एक महल तमीर किया जाएगा। जिस शख्स ने हर दिन रात में 12 रकात सुनन मुकद्दा अदा की, उसके लिए इन रकात के सवाब में जन्नत में एक महल तमीर किया जाएगा। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने बुध, जुमेरात और जुम्मा को रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाते हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब और इशा के दरमियान 20 रकात अदा की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। ये सवालात अवबीन होती हैं। हजरत अब्दुल करीम बिन हारिस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मगरब और इशा के दरमियान की 10 रकात सवालात अवबीन अदा की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करते हैं। हजरत उमर बिन खिताब ने अर्ज किया, फिर तो हम बहुत से महलात बना लेंगे। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला इससे बहुत बड़े और अफजल है। तुम जितना ज्यादा अमल करके महलात बनवाओगे, अल्लाह ताला के खजाना रहमत में कोई कमी नहीं आती। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बाजार में दाखिल हुआ और ये कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 लाख नेकी लिखते हैं और 1 लाख गुनाह मिटाते हैं और जन्नत में एक महल बनाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु फरमाती है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स असर से पहले की 4 सुनते पाबंदी से अदा करता रहा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे।
हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान का किसी दिन का रोजा खामोशी और संजीदगी से रखा, अल्लाह ताला उसके लिए सुरख याकूत से या सबज जबरजद से जन्नत में एक महल बनाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, जिस शख्स ने रमजान का किसी दिन का रोजा खामोशी और संजीदगी से रखा, अल्लाह ताला उसके लिए सुरख याकूत से या सबज जबरजद से जन्नत में एक महल बनाएंगे। हजरत आयशा रदियल्लाहु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, तुम में से आज किसी ने रोजा रखा है? हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ने अर्ज किया, मैंने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसी ने किसी मुसलमान की जनाजा को रुखसत किया है? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ने अर्ज किया, मैंने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसी ने मरीज की बीमार पुरसी की है? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ने अर्ज किया, मैंने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसी ने मस्कीन को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ने अर्ज किया, मैंने। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान में ये चार खसलतें पाई जाएंगी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में शानदार महल बनाएंगे। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा और शब जुमा में सूरह दुखान की तिलावत करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। हकीम इब्ने मोहम्मद अजमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जन्नत जिक्र अल्लाह यानी हर किस्म की इबादत के साथ तमीर होती रहती है। जब मुसलमान जिक्र करने से रुक जाते हैं तो जन्नत को तैयार करने वाले फरिश्ते जन्नत की तमीर करने से रुक जाते हैं। जब इनको कहा जाता है कि तुम क्यों रुक गए, तो वो कहते हैं कि हम तक खर्चा यानी अमल स्वालिह पहुंचेगा तो हम फिर तमीर जन्नत शुरू कर देंगे। हजरत मोहम्मद बिन नसर हारसी फरमाते हैं, जो मुसलमान भी दुनिया में खालिस अल्लाह की इबादत में लगा रहे तो उसके लिए कोई फरिश्ता उसकी दर्जात की तरक्की के काम में लगा रहता है। जब बंदा अमल से रुक जाता है तो ये फरिश्ते भी जन्नत की तज़य्यन व तरक्की करने से रुक जाते हैं। जब इनको कहा जाता है तो तुम क्यों रुक गए हो, तो वो कहते हैं कि हमारा साथी दुनिया में मौजूद अमल करने वाला फजूल काम में मसरूफ हो गया है। हजरत उजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान हुआ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, मैं उसके लिए जन्नत के निचले दर्जा में एक महल का जामिन हूँ और जन्नत के दरमियाने दर्जा में महल का जामिन हूँ और एक जन्नत के बुलंद बाला खानों में महल का जामिन हूँ। जो शख्स मुझ पर ईमान लाया, मुसलमान हुआ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, मैं उसके लिए जन्नत के निचले दर्जा में एक महल का जामिन हूँ और जन्नत के दरमियाने दर्जा में महल का जामिन हूँ और एक जन्नत के बुलंदो बाला खानों में महल का जामिन हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की सब का खला पुर किया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उसकी वजह से एक दर्जा बुलंद करेंगे और उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। जिस शख्स ने नमाज की सब का खला पुर किया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उसकी वजह से एक दर्जा बुलंद करेंगे और उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। हजरत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु फरमाते हैं, जिस शख्स ने बहुत ही मामूली दर्जा की गुजारी की रोजी पर बेहतरीन सब्र का मुजाहिरा किया, जहां वो शख्स चाहेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। हजरत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु फरमाते हैं, जिस शख्स ने बहुत ही मामूली दर्जा की गुजारे की रोजी पर बेहतरीन सब्र का मुजाहिरा किया, जहां वो चाहेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठ को छोड़ देगा अल्लाह ताला उसके लिए सतह जन्नत में एक महल बनाएंगे, और जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया हालांकि वो हक पर था, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरमियान में एक महल बनाएंगे, और जिसके अखलाक पकीज़ा होंगे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के आला मुकाम में महल बनाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजानुल मुबारक में रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदा के बदले में 1500 नेकियां लिख देते हैं, और उसके लिए जन्नत में सुरख याकूत का एक महल बना देते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एक कब्र खोदी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाते हैं। वो हजरात जो ने इन नेक वो हजरात जो इन नेक अमाल को काफी तफसील से पढ़ना और अमल करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े फायदे की बात है। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे अमाल हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला न सिर्फ जन्नत में दाखिल करते हैं बल्कि जन्नत में अजीम शान मोहल्लात का मालिक हमें बना देते हैं। तो नेक अमाल जो है, नेक अमाल चाहे वो इबादत हो, चाहे वो अस्कार हो, चाहे वो इस तरह के अमाल हो जैसे जनाजे में शिरकत करना, बीमार की बीमार पुरसी करना, भूखे को खाना खिलाना, तो इन अमाल पे अल्लाह ताला जो है वो इंसान के लिए अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अब फर्ज करें एक हदीस शरीफ का मफहूम जो अभी हमने पढ़ लिया है कि आप बाजार चले जाएं और चौथा कलमा जो है उसको पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें, तो 1 लाख नेकियां आपके अमल नामे में लिख दी जाती हैं, 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और जन्नत में एक अजीम शान महल आपके लिए बना दिया जाता है। अब बहुत छोटा सा अमल है लेकिन अजर इसका बहुत बड़ा है। इस तरह जो अल्लाह की रजा के लिए किसी मस्जिद को बनाएगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और जन्नत कैसी प्यारी जगह होगी, भी लॉ के स्टार्ट में हमने उसका जिक्र कर दिया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमाल करवाए, अल्लाह ताला हमको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता कर दे जिससे अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हम सबको जन्नत में जाने वाला बना दे और जहन्नम से हमें बचा दे। अब इस विलाग के एंड पे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली विलाग में फिर मुलाकात होगी, फिर जन्नत के मुख्तलिफ नेमतों का इंशाल्लाह तज़किरा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।